اسمبلی تحلیل کے 90 روز میں الیکشن ہوں گے، ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا لاہور میں دستور پاکستان میں اقلیتوں کو حاصل حقوق کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب۔ کہا آئین کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کے مذاکرات سے سپریم کورٹ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ Justice Cornelius, who was by then in this, it was called the Federal Court. In the following year, when the Constitution came, it became the Supreme Court in 1956. In the Federal Court, he was the lone voice. Dissolution of the Assembly, Constituent Assembly, by the Governor General was illegal. That judgment today is hailed as an outstanding rendition of justice, for the reason that the majority decided that the Sindh High Court did not have the jurisdiction to decide the matter, and therefore there was no judgment of the Supreme. The majority allowed technicality to avoid the truth, and when truth was avoided, justice was avoided. Today, one man's voice is celebrated in our circles. The rest of the men, although they include many distinguished jurists, the majority are not mentioned. عمران خان سر سے پاؤں تک جھوٹا اور مکار ہے۔ عمران خان کا ہر جھوٹ قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ اس محسن کش انسان کی اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیراعظم نے اسکاٹش فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف سے ملاقات کی اور انہیں اہم عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اللہ نے اس میں مجھے نہیں، پاکستان کے عوام کو سرخرو کیا۔ میرے خلاف بدنیتی سے ایک کیس بنایا گیا تھا، جھوٹا بالکل غلط الزامات تھے، اور وہ 2 سال این سی ایل کی تحقیق کی، اور نہ صرف برطانیہ کے کونے کونے میں بلکہ سوئٹزرلینڈ میں، دبئی میں، اور نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے سیف ہیون میں پوری تحقیق کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے کلین چٹ ملی۔ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اور پاکستان کے عوام، پاکستان سرخرو ہوا، لیکن اس کی بدنامی کے لیے پاکستان عمران نیازی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بے شمار پیسہ بھی لگایا، وقت ضائع کیا، اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے تمام حربے استعمال کی، لیکن رب تعالیٰ کے کرم کے پاکستان کی عزت محفوظ رہی، بلکہ عزت بڑھی ہے۔ تو یہ جو کتنے پیسے اس میں لگے وہ میں ضرور اس کی لگی، تو اس کا جھوٹ پوری قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ سر سے پاؤں تک جھوٹا، مکار اور موسم خوش آدمی ہے۔ انشاءاللہ ضرور اللہ کی پکڑ ہوگی۔ دھونس دکھاؤ گے تو ہو سکتا ہے اگلے سال مئی میں بھی انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہو۔ عمران خان کی الیکشن کرانے کی دھونس دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ تم سڑکوں پر آؤ، تمہیں گھر میں بھیجوں گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا 2 ٹوک پیغام۔ پی ٹی آئی کا احتجاج سوشل میڈیا کا ممی ڈیڈی شور قرار دے دیا۔ کہا کہ ثاقب نثار پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچ رہا ہے، کیا اس معاملے پر از خود نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے؟ تو کہتا تھا نا کہ تمہیں میرا نام لے کے کہتا تھا کہ تمہیں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بیٹا تم آؤ، تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ تو اب تم کہہ رہے ہو 1 سال بعد کہ جی 14 مئی کو الیکشن اگر نہ ہوئے تو میں سڑکوں پہ ہوں گا۔ تم بیٹا سڑکوں پہ آؤ، تمہیں گھر میں بھیجوں گا، اور اگر تم گھر نہ گئے تو پھر کسی اور جگہ تمہیں بھیجوں گا، اور وہاں پہ تمہیں دنیا کی ہر سہولت ملے گی، لیکن ایک چیز نہیں ملے گی جس کے بغیر تمہارا جو ہے وہ گزارا مشکل ہے۔ الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہوگا، فری ہوگا، فیئر ہوگا، اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ ثاقب نثار بابا رحمتے جو اپنے آپ کو کہلاتا تھا، لیکن بعد میں وہ بابا زینتے ثابت ہوا، آج وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچ رہا ہے۔ وہ اس طرح سے جو ہے وہ پیسے کما رہی ہے، وہ اس طرح سے پارٹیوں کے ٹکٹ بیچ رہی ہے۔ جب یہ چیف جسٹس تھا تو اس وقت یہ کیا کرتا ہو؟ یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ثاقب نثار نے خود کہا کہ یہ آواز میرے بیٹے کی ہی ہے۔ سندھ کے 24 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 11 یو سیز
और 15 वार्ड्स की 26 नशिस्तों पर ज़बरदस्त मुकाबला। गैर हतमी गैर सरकारी नताज का सिलसिला जारी है। कराची की 11 में से 4 यूनियन कमेटियों का मुकम्मल नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी 6 काउंसलर्स के साथ आगे। नून लीग और जमात इस्लामी का एक एक काउंसलर कामयाब। यूसी 2 बल्दिया टाउन जिला किमाड़ी में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के आरिफ तनोली 3009 वोट लेकर कामयाब। हैदराबाद की यूसी 137 के वार्ड 1 से पीपल्स पार्टी के मीर जुल्फ़िकार तालपुर चेयरमैन मुंतखब हो गए। खैरपुर नाथन शाह की यूनियन कौंसिल सिंधी बटड़ा में पीपल्स पार्टी के शाहिद थेबो 2808 वोट लेकर कामयाब हो गए। कराची के अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताज जो सामने आ रहे हैं, हम उनसे आपको आगाह कर रहे हैं। और ये सिंध के 24 अजला के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं। कराची के 7 अजला में 11 यूसीज़ और 15 वार्ड्स की 26 नशिस्तों पर ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। और कराची की ही 11 में से 4 यूनियन कमेटियों का मुकम्मल नतीजा भी आ गया है। पीपल्स पार्टी अभी तक के नताज के मुताबिक 6 काउंसलर्स के साथ आगे है, जबकि मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का एक एक काउंसलर कामयाब हुआ है। यूसी 2 बल्दिया टाउन जिला किमाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। पीपल्स पार्टी के आरिफ तनोली 3009 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कायम खानी, हमारे नुमाइंदे औरंगी टाउन से, उनसे वहाँ का अहवाल जानते हैं। जावेद, आपके पास क्या मालूमात है आज के इंतखाबात और अब तक के नताज के हवाले से? बिल्कुल जी, आज कराची में 11 जो है वो नशिस्तों के लिए यूनियन कमेटीज़ पर जो है वो 15 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल थे, जिसमें से दोनों पार्टी यानी कि पहले भी जिनकी सीटें ज़्यादा हैं, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान मेयर के लिए जो है वो इंतखाब के लिए जंग है एक दूसरे के। और दोनों की जानिब से जो है वो आज सुबह से ही जो है पहले तो सुसरवी का शिकार रहा शहरियों को, वोटर्स को जो है वो घर से निकालने में जो है वो सियासी नुमाइंदे जो है वो इस बात पर जोर रहे। और किसी ने ट्रांसपोर्ट मुहैया की तो कोई डोर टू डोर गया, इसलिए कि एतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और कराची के शहरी जो है वो अपनी नींद को जो है वो सब देते हैं फोकियत और पहले आराम करते हैं। सेकंड हाफ के अंदर वोटर बाहर आया, टर्नआउट यकीनी तौर पर बाई इलेक्शंस में कम होता है और आज भी देखने में आया कि कम था। 11 यूनियन कमेटीज़ में से जो है वो 8 का जो रिजल्ट है तकरीबन आ गया, जिसमें 2 पर जो है वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक जमात इस्लामी और 6 पर जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं सबकत लिए हुए हैं। और इसके अलावा 3 पर जो अभी भी जो है वो कंपाइल नहीं किया जा सका है मुकम्मल तौर पर रिजल्ट, उसकी गिनती का अमल जो है जारी है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पोलिंग कैंप्स जो बनाए गए सियासी जमातों की जानिब से, वहाँ पर बैठ कर जो है वो इस बात को कंपाइल किया जा रहा है वोट। लेकिन कुछ जगहों पर जो है वो जो कशीदगी देखने में आई, जैसे कोरंगी में, औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में, और इसके साथ साथ न्यू कराची और नार्थ आज़माबाद में भी जो है कशीदगी देखने में आई। सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने हुए, कहीं पर जो है वो पीपल्स पार्टी के सामने जमात इस्लामी और कहीं जमात इस्लामी के साथ TLP और PTI के कारकुनान जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ आमने सामने दिखाई दिए। एक दूसरे पर नारेबाजी भी की। कशीदगी को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी के फुल पूर्व इंतजाम किए गए थे। रिजर्व पर जो पलटूनें रखी गई थी उन्हें तमाम को जो है वो रिजर्व रखकर फ़ौरन अहकाम दिए गए और तमाम सूरत को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के आला अफसरान SSPs जो अपने ज़िलों के अंदर जो है वो सारा दिन तैनात रहे। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर्स और इंतजामिया भी जो है वो इसके लिए मौजूद थी कि किसी गैर खुशगवार वाक़े को निपटने के लिए तैयार थे। और मुकम्मल तौर पर कराची में जो 11 जो यूसीज़ थी उन पर इंतखाब हुआ, उसमें नोक जो कहीं देखने में, लेकिन पूर्णवन तौर पर जो इंतखाबात हुए आखिरी मराइल अब जारी हैं और तकरीबन 8 नशिस्तों पर जो है वो रिज़ल्ट आ गया है गैर हतमी गैर नतीजा, लेकिन 3 की अब भी जो है वो बाकी, जिसमें बल्दिया टाउन की एक नशिस्त है और इसी तरह 2 यूनियन कमेटीज़ हैं जिन पर जो है वो पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद अब तक जो है वो काउंटिंग जारी है। जी ठीक है जावेद, साथ ही रहेगा। हैदराबाद से अली हमजा ने भी ज्वाइन किया हमें। अली, हैदराबाद में मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल कैसा रहा दिन भर और अभी तक के नताइज के मुताबिक कौन सी जमात आगे है? जी बिल्कुल, अब तक के नताइज की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 160 यूसी और 160 यूसी में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 31 नशिस्तों पर तो बिना मुकाबले कामयाब हो गई थी और अब आज जो है 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पीपल्स पार्टी ने 4 पर पोलिंग हुई थी, जिसमें से 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने अपने नाम की, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की जो पार्टी पोजीशन है वो मजीद मजबूत हो गई है और 98 सीट जो है वो उनके 160 में से उन्होंने हासिल करनी है। अगर मजबूत तौर पर दिन भर की सूरत हाल की बात की जाए तो दिन भर की सूरत हाल तरीके से जारी रही, सिवाय एक पोलिंग स्टेशन में जहाँ पर झगड़ा हुआ और शदीद झगड़ा हुआ 2 ग्रुपों में। एक आज़ाद उम्मीदवार के हामियों का ग्रुप था और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामियों का ग्रुप था और यूसी 119 थी। जब शदीद झगड़ा हुआ और तोड़फोड़ हुई पोलिंग स्टेशन में, पहले कैंपर बाहर लगाया हुआ बैलेट बॉक्सेस को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची।
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वहां पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने यह ऐलान किया कि 119 यूसी जो है उस पर रीपोलिंग की जाएगी और फौरी तौर पर वहां पर पोलिंग का अमल मुअत्तल कर दिया गया। अब जो इलेक्शन होंगे वो 119 पर बाद में होंगे। अगर आज के नशिस्तों की बात की जाए तो जमनी बल्दियाती इलेक्शन के दौरान 10 नशिस्तों पर आज पोलिंग हुई थी। एक नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी हो गए, जबकि 4 नशिस्तों में से 2 नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल करनी है, एक नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। इसी तरह अगर जनरल कौंसिल यानी आज के उम्मीदवारों की बात की जाए तो आज के उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवारों का जो है उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 के नताइज आ चुके हैं, 2 के नताइज पेंडिंग है। जैसे ही मौसूल होंगे तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज जारी कर दिए जाएंगे। उस वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की इंतजामिया है उनकी जानिब से थाना 20 सेक्शन में उन अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया है जिन्होंने हंगामा आराई की थी और 150 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना 20 सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अली साथी रहेगा। इक़्तिदार अनवर ने लियारी से हमें ज्वाइन किया। इक़्तिदार, कैसा रहा सारा दिन जो पोलिंग का अमल है और अब तक के नताइज क्या कहते हैं? देखिए, कराची के जो ज़िमनी इलेक्शन थे उनमें 11 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 15 कौंसलरों का इलेक्शन था, लेकिन मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वो लियारी का इलाका है और इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ से जो लियारी टाउन की 13 में से 12 यूसियाँ थीं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी। इस एक यूसी के ऊपर जमात इस्लामी का ये दावा था कि ये उनकी घर की यूनियन कमेटी है, यहाँ से उन्हें हराना मुश्किल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल यूसी थी, लेकिन फिर जैलों ने अज़म किया और आज उस अज़म को पूरा करके दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हल्का 249 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। हमारे साथ जो विनिंग कैंडिडेट हैं अब्दुल कादिर लोहार साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह इन सारी चीज़ों को देखते हैं। कादिर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने यहाँ से कामयाबी हासिल। खैर मुबारक। देखें, बुनियादी तौर पर जो है ये यूसी हमने कभी विन नहीं की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मगर इस बार हमने ये साबित कर दिया कि पूरा लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने यहाँ लोगों को काम करके बताया। इस यूसी में जब भी दूसरे बल्दियाती नुमाइंदे आते रहे, उन्होंने कभी भी आवाम की सहूलत के लिए नहीं सोचा और ना उनमें वो सलाहियत थी। और हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने इतनी मेहनत की इस यूसी को बेहतरीन के लिए और सीवरेज के मसले को हल करने के लिए, सड़कों को साफ़ सुथरा करने के लिए। उससे ये हुआ कि आवाम ने समझा, आवाम के जहन के अंदर रहा कि भाई अगर मसाइल का हल कहीं से मिलेगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसाइल का हल कर सकती है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पर इक़्तिदार, बिल्कुल ठीक है, आपने यहाँ विनिंग कैंडिडेट से बात भी की है और नताइज से हमें आगाह कि इक़्तिदार अनवर आपका, जावेद कायम खानी आपका और अली हमजा आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जमात इस्लामी ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि न्यू कराची रशीदाबाद में वोटों की गिनती करने नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 11 और फॉर्म 12 शफाफियत से जारी करे। आखिर तक वो काउंटिंग नहीं होने दे रहे। हम ये रशीदाबाद में तो सुबह इन्होंने पोलिंग एजेंट को नहीं जाने दिया और फिर अपनी मर्जी से उन्होंने अपने जो बैलेट पेपर थे उनको जो है वो इस्तेमाल किया जाली तरीके से और अभी आखिर तक वो काउंटिंग नहीं होने दे रहे। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर कहीं है, इसका कोई वजूद है, तो जाए और वहां पर जेन्युइन रिजल्ट को अनाउंस करे। फॉर्म 11 भी दें, फॉर्म 12 भी दें और आरओ का रिजल्ट भी दें। जालसाजी ना करें। आपकी यही तैयारी है कराची पर कब्जा करने की, इसके अलावा कराची के लोग आपको वोट नहीं देते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जजेस को पार्लियामेंट के कटहरे में बुलाया जाएगा। लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया के बहरान में पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। बहरान का सबसे अच्छा हल ये है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। का दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है। उसने हमें इज़्ज़त दी हुई है पार्लियामेंट। सबसे अच्छा और पायदार हल जो है वो ये है कि तमाम अदारे जो है ना वो तजावुज़ ना करें अपनी हदूद से। जिस तरह मैंने पार्लियामेंट में उस दिन कहा कि वो भी जो है ना वो पार्लियामेंट के कटहरे में आएँ, हम उनको बुलाएंगे जिस तरह उस दिन मैंने स्पीच में भी कहा और लोगों ने भी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा और कौंसलर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की गई।
آرمی چیف نے پاک چین اسٹریٹجک تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ جنرل سید آصف منیر نے سی پیک منصوبے کے لیے مکمل تعاون کا عہد کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ چینی وزیر خارجہ نے سی پیک منصوبے پر پیش رفت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔